तो the subject which is very essential for your in exam and also for your PCSJ and APO. This exam is generally includes 100 number in PCSJ. When you attend or you can give the exam of PCSJ, the papers should be very important and very much essential for your exam. Due to that, you have to read carefully and seriously. I would like to concentrate yourself on the topic of today is essay. Write down the name of the essay. Number 1, fundamental right. Essay. Fundamental right. Fundamental rights. Number 2, secularism. Number 3, status of women. Number 4, terrorism. Number 5, law and environment. Number 6, independent judiciary. Number 7, लोक अदालत. From 7 topics, you have to write down it. From 7 topics, you have to get one essay in your exam. This essay is 200 words. How many words? 200 words. And must emphasis on the real theme of the essay. Real theme of the essay. Today I discuss you the 7 topics, including all the topics in some purview, which have you listen it. Then after I will give you one topic to write down in your home. Then you have to see me, and then after I check it. Number 1, फंडामेंटल राइट. जैसे कि आपने देखा होगा भारतीय संविधान जब पढ़ेंगे, आपको कोई आपके संविधान के टीचर पढ़ा रहे होंगे तो फंडामेंटल राइट की बात आई होगी, जिसे हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं. आपको पता होना चाहिए कि इन इंडिया द पर्सन्स हु लिव और इन इंडियन सॉइल और इंडियन और फॉरेन कंट्री बोथ हैव ए फंडामेंटल राइट. कोई भी इस देश में जो भी नागरिक रहता है, ए पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम एनी स्टेट और एनी कंट्री, he must get the right of fundamental right. He have a right to achieve the fundamental right, the duties which have been enshrined in your constitution. There are 11 duties in your constitution. That 11 duties have been fully for the citizens to take the embarkment of the life. Number 1, fundamental right. What is fundamental right? The question before you, if somebody asks what is fundamental right, the answer is that the fundamental right is a right which is enshrined in our constitution, part 3rd. Okay, part 3rd of the constitution. Part 3rd of the constitution. Fundamental right is a basic right. Fundamental right is a basic right
and it is a very necessary right, or you can say it is a right, it is such a right, without that right man cannot live. And man, if a man can survive, or you can say if a man can live a happy and happiness in his or her life, the fundamental right is to be too much important in his life. अब देखिए, एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, आना चाहिए, कि फंडामेंटल राइट जो है यह भारतीय नागरिकों को मूल रूप से निवास करने वाले या भारत में मूल रूप से जो भी नागरिक हैं उनको दिया जाता है, और उनको दिए जाने के पश्चात वह अधिकार उनको दिए गए हैं जो वह इसका उपभोग करेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। आप फंडामेंटल राइट का गलत उपयोग नहीं करेंगे, फंडामेंटल राइट को साधन मानेंगे, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब आपको एक सवाल आता है, सेकुलरिज्म नंबर 2। मैं डिटेल्स बताऊंगा, लिखाऊंगा भी, चिंता मत करिए। आई हैव टुडे गिव यू दी समरी ऑफ दी टॉपिक। नंबर 1 सेकुलरिज्म, नंबर 2 आपने देखा होगा भारतीय संविधान में 15 सेकुलरिज्म शब्द कब आया। अपने लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर से पूछ सकती हैं, वो बताएंगे। बताओ। अमेंडमेंट, गुड। 42 अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। अब देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। किसी भी देश की कोई भी जाति धर्म नहीं होगा राज्य का। ये तो सही बात है। कितने में सेक्शन में है, आर्टिकल में है? 25। बताओ। सेकुलरिज्म अच्छा चलो तुम जानती हो। सुनो, अब देखिए सेकुलरिज्म क्या है कि 42nd अमेंडमेंट कम थ्रू दी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं बेटा, अब हम आर्टिकल पूछ रहे हैं कि सेकुलरिज्म के आर्टिकल। हाँ चलो ठीक है, चलें। हम ये कह रहे हैं कि हम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज constituted by our forefathers. When the drafting committee has drafted the constitution and they have drafted the constitution, and after the drafting of the constitution, the secularism word is not there. You know, after 42nd amendment, this word is to be coming, and after that enacted, and after that why the word is come, why the word is come, because of that the legacy of the Nehru Parivar is ruling the country, and by that legacy the word came, or you can say came into force in our constitution. हिंदू सेकुलरिज्म शब्द को संविधान निर्माण के समय निर्मात्री सभा ने इसको लागू नहीं किया था, न शामिल किया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद जो नेहरू खानदान था, जिसका शासन था, उन्होंने इसको लागू किया और इसको अमेंडमेंट करके, इसको संशोधन करके इसको संविधान में शामिल किया। संशोधन करने के पश्चात स्थिति ये हुई कि इस सेकुलरिज्म शब्द को लाने का मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान को बराबर का दर्जा देना, हिंदू मुसलमान को बराबर का दर्जा देना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, हिंदू एंड मुस्लिम आर बोथ आर द सेम। कहने का मतलब ये हो गया कि राजनीति हमें करना है, दोनों को लुभा के करना है, दोनों की वोट लेना है, दोनों के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तो हुआ, आपको पता होगा। अब देखिए, राजनीति में मत जाइए। सेकुलरिज्म शब्द को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। द सेकुलरिज्म
क्या आप तो है, दोनों लोग पढ़े हो, अभी लॉ में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, क्या सेकुलरिज्म की बहुत उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस क्या है? कहीं इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं है। सेकुलरिज्म शब्द को केवल बैलेंस करने के लिए लाया गया, हिंदू मुस्लिम को बैलेंस किया जाए, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए और उनके बराबर किया जाए। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द की बुक ऑफ द लॉ। आपको पता होगा हमारा संविधान विधि का एक कुंजी है, और बाय दैट लॉ, बाय दैट की वी हैव टू ओपन द लॉ। उस चाबी से हम विधि के सारे ताले खोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ आपको देखेंगे, आपको पढ़ाया होगा अपने टीचर, कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर ने, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, विस्तृत संविधान है। इसमें विस्तृत होने के कारण क्या है? The things which have been enshrined in this constitution is basically सारे देशों से लिया गया है, सारे देशों से समाहित करके इसमें सब चीज़ जोड़ दी गई है, कुछ बचा नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म में कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए गुड, सेकेंड फॉर्म में कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी इज ए लाइक ठीक थी, चालू थी, ठीक ठाक थी। अब देखिए, एक सवाल बनता है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन मेक्स द कंट्री हैव ए राइट टू राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंट्री। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का लिखा जाएगा तो उस देश की स्थिति के हिसाब से लिखा जाएगा, ना कि किसी देश से लिया जाएगा। भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी है, एनवायरमेंट, पर्यावरण कैसा है, कितने प्रतिशत लोग कृषि में हैं, कितने प्रतिशत लोग उद्योग में हैं, कितने प्रतिशत लोग नौकरी में हैं, कितने प्रतिशत लोग देश के साक्षर हैं, कितने प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। इसको भी ध्यान में रख के संविधान लिखा जाता है। लेकिन हमारे संविधान विद्वेताओं ने इसको ध्यान में ना रख के संविधान को लिखा। आप और पढ़ेंगे तो आपको ब्रॉड माइंड में मिलेगा। और ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक भेग हो गया, इसका महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं बन पाया। ये लॉन्ग ही रहा, लेकिन लॉन्गिट्यूड, और आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक लॉन्गिट्यूड और मैग्नीट्यूड, हाँ, तो लॉन्गिट्यूड और मैग्नीट्यूड ही रहा है, और किसी काम का ये लाइन बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब देखिए, आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओनली 10 आर्टिकल्स हैव बीन गिवन देयर। You have kept in your pocket as a diary, and always every human being, every citizen of the country know। भाई छोटा है, हर नागरिक जानेगा, गलतियाँ कम होंगी, संविधान से सब लोग अवेयर होंगे, सब लोग उसमें जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखिए कि 15 अगस्त 1947 को कितने देश आज़ाद हुए, बताइए। 15 अगस्त 1947 को के पहले 14 को पाकिस्तान ही आज़ाद हो गया। पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, समय कम है। भारत के साथ 14 ऐसे राष्ट्र थे आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 में। जो 14 देशों में 7 देश ऐसे हैं जो विकसित राष्ट्र हो गए हैं, और जो 7 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्सप्लोसिव बम्स अटैक हुए हैं, लेकिन आज भी वो जापान, हिरोशिमा, नागासाकी को जानती हैं आप, कब पैदा हुआ? 14 अगस्त 1947। तो आप देखिएगा, जापान एक मृत
होकर फिर उजागर हुआ। अगर भारत की स्थिति वो हो गई होती तो क्या होता, खड़ा ना हो पाता। तो आप पढ़िए। अब देखिए क्या हुआ, इतना लंबा संविधान बना देना और उसमें सारी चीज़ों को डाल देना और सारी चीज़ों को डाल के एक मोटी सी किताब बना के लोगों को दे देना। और नागरिक, आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ द इंडिया आर नॉट नोन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के 80% लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। यही कारण है कि कितना ये ज़्यादा बहुत मैग्नीट्यूड है और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लॉन्ग है, इसके कारण। लेकिन आप देखेंगे सेकुलरिज्म शब्द को ला के बहुत अच्छा नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद आपको आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो दिया गया सब, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। प्रियम्बल वह की है टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। और अभी सही है, आप जान लीजिए, एक सवाल उत्तर बताता हूँ, पीसीएससी में आ सकता है, एचएस में आ सकता है, आपके लाइफ में कहीं भी पूछ सकता है कोई कि वेयर इज जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए इसको, वेयर इज जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ लिखिए, जस्टिस इज अंडर दी, जस्टिस इज अंडर दी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। preamble of the constitution. Okay, then we have to discuss the third point. The third point is the status of women. You have to see in your copy the status of women. You know the periods of Vedic period. There are 4 kinds of Vedas, and in 4 Vedas there is one Veda which have fully described the status of women. हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में एक ऐसा वेद है जो महिलाओं के बारे में ही वर्णन करता है, हम बाद में बताएंगे आपको। अब बताइए ये कि हमारे देश की आज़ादी के पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही स्टेटस ऑफ वुमेन का बहुत गिरा हुआ स्तर था। महिलाओं को एक तुच्छ प्राणी के रूप में देखा जाता था, महिलाएं वस्त्र के रूप में देखी जाती थी, महिलाएं बाजार की एक वस्तु होती थी, उपभोग का साधन होती थी और निर्मित मात्र व्यक्ति उसे अपने लिए इस्तेमाल करता था। उनका प्रयोग केवल एक कपड़े के हिसाब से ही इस्तेमाल होता था और उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा नहीं प्राप्त था। आई एम राइट? तो स्थिति ये थी, स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए बहुत अधिकार दिए गए। अब देखिए, इसके अलावा भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज का लेना देना 1961 में ही ला दिया पार्लियामेंट ने। क्या दहेज रुका? आज दहेज 10 गुना बढ़ गया। आज लोग 1 करोड़ देने लगे जहाँ 10,000 देते थे। तो ऐसा स्थिति है कि नथिंग इज प्रोहिबिटेड, कोई चीज़ रुकी नहीं, बढ़ती गई। अब देखिए क्या हुआ कि स्टेटस ऑफ वुमेन को अगर आप देखेंगे तो स्टेटस ऑफ वुमेन इज ए सच ए स्किल, वुमेन स्किल आपने देखा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। महिलाएं सभी सेवाओं में जाएंगी, रेलवे, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, राजनीति, सारे क्षेत्रों में आज अव्वल है। आपको पता होगा महिला पायलट है, आपको पता होगा कि महिला वित्त मंत्री है, आपको पता होगा कि पहला प्रधानमंत्री थी महिला। तो ऐसा है कि महिलाओं को उसके बाद भी दबाया गया सारे पदों पे होने के साथ। लेकिन इन कंपेरिजन ऑफ दैट स्टेज टू दिस स्टेज, द स्टेटस ऑफ वुमेन इज ग्रोइंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। चाइल्ड मैरिज जो है रुका है, चाइल्ड मैरिज रुका है और चाइल्ड मैरिज रुकने से यथास्थिति कुछ कंट्रोल में है। और गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू
जो गैप है उसको भरने का प्रयास सरकार कर रही है। अब बेटी बचाओ बेटी अभियान का भी काम सरकार ने किया, भ्रूण हत्या का रोका। फिर देखिएगा महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार ने काम किया। तो ये महिलाओं के लिए बहुत सारे काम सरकार की बहुत सारी योजनाओं के तहत हो रहे हैं। अब महिलाओं का वो स्टेटस नहीं है जो स्टेटस पहले था, प्राचीन काल में था या फ्रॉम द इंडिपेंडेंस में था। आज महिलाएं पुरुष के बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उनके कानून के बराबर हैं। इक्वल, दे आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, मेन एंड वुमेन देयर इज नो कंपैरिजन, बोथ आर इक्वल। व्हेन एनीबॉडी इज आई टू बी IAS, the women shall also be liable to be IAS. Today is enough, and the other topics we will have to discuss in another lecture. Have a good day. Nice.